وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنی خیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ کوٹری کا ننگا فرش سردی میں اور زیادہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہاں صرف فرش پر کونے میں ایک پرانا سا کمبل بچھا تھا، اس کے اوپر ایک اور کمبل پڑا تھا۔ میں کونے میں کمبل لے کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ لوگ اب مجھ سے پوچھ گچھ شروع کرنے والے ہیں۔ یہ مجھے ٹارچر کریں گے اور مجھ سے اعتراف کروانے کی کوشش کریں گے کہ میں کشمیری کمانڈو ہوں، مگر مجھے اس قسم کے ٹارچر کی اذیت برداشت کرنے کی ٹریننگ مل چکی تھی۔ میرے ٹریننگ ماسٹر نے مجھے ٹارچر کے شدید سے شدید مرحلوں میں سے گزارا تھا اور یہ بھی تربیت دی تھی کہ جب اذیت حد سے گزر جائے تو مجھے اپنے جسم کو کس طرح سن کر کے اپنے اوپر یک طرفہ بے ہوشی طاری کر لینی ہے، یعنی ایسی بے ہوشی کے جس میں جسم پر کوئی اذیت کا اثر نہ ہو مگر آدمی ہوش میں رہے۔ ایک بات پر میں بڑا حیران تھا کہ انہوں نے ابھی تک میری تلاشی نہیں لی تھی۔ اس کوٹری میں 2 دن تک بند رہا۔ تیسرے روز ایس ایس پی سب انسپیکٹر جوشی کے ساتھ خود میری کوٹری میں آیا۔ 2 سپاہی ساتھ تھے۔ یہاں میری ہتھکڑی اتار دی گئی تھی۔ سپاہیوں نے فوراً 2 کرسیاں اندر ڈال دی۔ سب انسپیکٹر جوشی اور ایس ایس پی بھنڈاری کرسیوں پر میرے قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ کوٹری کی چھت کے ساتھ ایک بلب دن رات روشن رہتا تھا۔ ایس ایس پی بھنڈاری بڑا خرانٹ اور تجربہ کار پولیس آفیسر تھا۔ اس نے مجھ سے بڑی ملائمت اور نرمی کے ساتھ باتیں شروع کر دیں۔ وہ کشمیر کے بارے میں باتیں کرنے لگا کہ کشمیر کے مسلمان کشمیری ناحق اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ آدھے سے زیادہ کشمیری مسلمان ہندوستان کے ساتھ ہیں اور وہ ہندوستان کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں۔ جب اس پولیس آفیسر نے آتے ہی کشمیر کی آزادی کے بارے میں گفتگو شروع کی تو میں فوراً سمجھ گیا کہ ان لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ میں کشمیری کمانڈو ہوں۔ پھر بھی میں اپنی طرف سے بالکل انجان بنا رہا اور میں نے بلند آواز سے کہا، یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ کشمیر کے سارے مسلمان ہندوستان سے الگ ہو کر پاکستان کے ساتھ الحاق کے حامی ہیں۔ ہندوستان نے زبردستی کشمیر پر اپنی فوج کے ذریعے قبضہ کر رکھا ہے۔ مجھے اتنی جلدی ایسی باتیں زبان سے نہیں نکالنی چاہیے تھیں۔ ان باتوں نے کم از کم یہ ضرور ثابت کر دیا تھا کہ میں کشمیر کی تحریک آزادی کا حامی ہوں اور کشمیری مسلمانوں کے حق خود ارادی کے حق میں ہوں۔ ایس ایس پی نے مسکراتے ہوئے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کشمیری مجاہدین کی تحریک سے تعلق ہے اور تم کشمیری کمانڈو ہو جسے بھارت میں تخریبی کارروائیوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس وقت مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے فوراً کہا، یہ جھوٹ ہے، مجھے کسی ملک نے انڈیا میں جاسوسی کے لیے نہیں بھیجا۔ کشمیر کی تحریک آزادی کی جو میں نے بات کی ہے وہ کشمیر اور بھارت کے ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ ایس ایس پی بھنڈاری مسلسل مجھے گھور رہا تھا۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ اسے میرے بارے میں کسی خفیہ بات کا علم ہو چکا ہے۔ اس نے میری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میری طرف ذرا سا جھک کر پوچھا، احمد آباد، آگرہ اور دلی، ان شہروں میں تمہارے دوسرے ساتھی کہاں پر ہیں؟ اگر تم ہمیں ان کے صحیح ٹھکانے بتا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ہم تمہیں اپنی نگرانی میں واپس پہنچا دیں گے۔ میں نے بھی ایس ایس پی کو گھورتے ہوئے صاف انکار کر دیا، میرا کوئی ساتھی نہیں، میں جالندھر میں محنت مزدوری کرتا ہوں۔ کیا تم ہندو ہو؟ ہاں، میرا نام دیوناتھ ہے۔ اس وقت یہی ہندوانہ نام میری زبان پر آیا اور میں نے یہی بول دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس وقت ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ان لوگوں کو میرے بارے میں سب کچھ پتہ چل چکا ہے، اب انہوں نے صرف کوئی ثبوت ہی میرے سامنے لانا تھا۔ جب میں نے کہا کہ میں ہندو ہوں تو یہ اندھیرے میں کیا ہوا فائر تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے ہندو یا مسلمان ہونے کی کلی 1 سیکنڈ میں کھل سکتی ہے، دوسرے لمحے میرا مسلمان ہونا ثابت ہو گیا۔ سب انسپیکٹر جوشی نے بھی نرم رویہ اختیار کیا ہوا تھا۔ کہنے لگا، ہمارے پاس اس بات کا مکمل ثبوت ہے کہ تم پاکستانی جاسوس ہو، تم کشمیری کمانڈو بھی نہیں ہو، کیونکہ تم کشمیری نہیں، مگر تم کشمیریوں کے ساتھ مل کر بھارت میں تخریبی کارروائیاں کرنے آئے ہو اور کر رہے ہو۔ ایس ایس پی صاحب نے تمہیں جو پیشکش کی ہے وہ تمہیں اذیت ناک موت سے بچا سکتی ہے۔ ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ انڈیا میں تم لوگوں کے خفیہ ٹھکانے کہاں کہاں پر ہیں اور تمہارے ساتھ اور کون کون لوگ ہیں۔ میرے پاس انکار کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی، مگر مجھے اقرار بھی نہیں کرنا تھا۔ اپنے احمد آباد اور دلی والے ساتھیوں کے کسی حالت میں نام نہیں بتانے تھے۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ تب ایس ایس پی بھنڈاری نے مجھے بالوں سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا اور گالی دے کر کہا، ہم نے تمہاری تصویر احمد آباد سیکرٹ پولیس کو بھیجی تھی، وہاں سے انہوں نے تمہاری تصویر دیکھ کر تصدیق کی تھی کہ تم ہی وہ پاکستانی جاسوس ہو جو گوکل داس پانڈے کے گھر میں جینی سادھو کے بھیس میں رہ رہا تھا۔ جس کمرے میں تم رہتے تھے وہاں ہم نے مائکرو فون اور چھوٹا ریڈیو ٹرانسمیٹر بھی برآمد کر لیا ہے۔ تم پولیس ریڈ پر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر آخر یہاں پکڑ لیے گئے۔ تم ہی وہ پاکستانی جاسوس ہو جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مڈگھاٹ اسٹیشن پر ملٹری ایمونیشن کی گاڑی تباہ کی تھی۔ تم نے ہی دوارکا فورٹ کے ایمونیشن ڈمپ کو اڑایا ہے۔ کیا تم اب بھی انکار کرتے ہو؟ میرا سارا راز فاش ہو چکا تھا۔ میں نے دوسرا موقف اختیار کر لیا جو اصل حقیقت تھی۔ میں نے کہا، ہاں، میں کشمیری کمانڈو ہوں، میں پاکستانی ہوں، مگر میں پاکستانی جاسوس نہیں ہوں۔
मुझे पाकिस्तान ने यहाँ जासूसी के लिए नहीं भेजा। मैं अपनी मर्जी से मजलूम कश्मीरी भाइयों की मदद करने के लिए आया था। मैंने मडघाट और द्वारका फोर्ट के असलहे को भी इसलिए तबाह किया कि वो असलहा मेरे कश्मीरी भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रहा था। मैंने आपको सच बात बयान कर दी है, अब आप मेरे साथ जो चाहे सुलूक करें। सब इंस्पेक्टर जोशी ने कहा, लेकिन तुमने अभी तक अपने साथी कमांडोज के बारे में नहीं बताया कि वो कहाँ हैं और उनके नाम क्या हैं। मैंने कहा, मेरा कोई साथी नहीं है, मैं अकेला हूं और मैंने अकेले ही मडघाट की एमुनेशन ट्रेन उड़ाई थी और द्वारका फोर्ट का एमुनेशन का जखीरा तबाह किया था। एसएसपी भंडारी कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ। अहमदाबाद से चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर शाम तक आगरा पहुंच जाएगा। वो तुम्हें पहचानता है, वो तुम्हारी शनाख्त करेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि तुम किस तरह अपने मंसूबों के बारे में और अपने साथियों के नाम पते किस तरह नहीं बताते। उसने एक सिपाही को हुक्म दिया, इसकी कड़ी निगरानी की जाए। ये सिपाही सब इंस्पेक्टर और एसएसपी के साथ ही कोठरी से निकल गया। उसने कोठरी की सलाखों वाले दरवाजे को बंद करके भारी ताला लगा दिया और पहले वाले संतरी से कहा, तुम जाओ, मैं ड्यूटी दूंगा। पहला वाला सिपाही चला गया। मैं बाजी हार चुका था, लेकिन इस बात पर बड़ा हैरान था कि अभी तक किसी ने थाने में मेरी तलाशी नहीं ली थी। खुदा जाने वो किस लम्हे का इंतजार कर रहा था। इतनी बहुत गनीमत थी कि कोठरी के अंदर मुझे हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। मेरी जेब में सिवाय कुछ नकदी और छोटी सी डिब्बी के और कुछ नहीं था, लेकिन इस छोटी सी डिब्बी में 6 टाइम बम थे। ये च्युइंगम बम की 6 चौकोर टिक्कियां थी, जिनकी वज़ाक़ता बिल्कुल च्युइंगम की तरह बनाई गई थी, लेकिन उनके अंदर इंतहाई धमाका खेज मवाद भरा हुआ था। एसएसपी भंडारी की ज़बानी मुझे इल्म हो चुका था कि अहमदाबाद सीक्रेट पुलिस का कोई ऑफिसर वहां से आगरा के लिए रवाना हो चुका है। जरूर उसने मुझे गोकुलदास पांडे के घर पर देखा होगा। उसको मेरी तस्वीर भी मिल चुकी थी। अब उसने आकर मेरी शनाख्त करनी थी और उसके बाद मुझे हैवानी टॉर्चर का निशाना बनाना था, जिसको मुझे मौत की सरहदों तक बर्दाश्त करना था। लेकिन मैं तशद्दुद और अजियत के लम्हात शुरू होने से पहले वहां से फरार हो जाना चाहता था। सवाल ये था कि कैसे। एक राइफल बरदार सिपाही दरवाजे पर पहरा दे रहा था। ये एक बड़ा मसला था जो इस वक्त मेरे सामने था और मुझे तरबियत याफ्ता तजर्बेकार कमांडो होने की हैसियत से इस मसले को बहुत जल्द हल करना था। मसले का एक हल मेरी जेब में मौजूद था, लेकिन ये आखिरी हल था और इसमें मेरी अपनी जान जाने का खतरा था। मैं फरार के किसी दूसरे तरीके पर गौर कर रहा था। एक तरीका यह था कि मैं बाहर खड़े संतरी को किसी तरह दरवाजे की सलाखों के पास बुलाऊं, सलाखों में से हाथ निकालकर उसकी गर्दन का मनका तोड़कर उसकी बेल्ट के साथ जो चाबियों का गुच्छा था वो अपने कब्जे में कर लूं और दरवाजा खोलकर थाने की अकबी दीवार फलांग कर फरार हो जाऊं। यह हल बिल्कुल ऐसा ही था कि बगले को पकड़ने के लिए उसके सर पर मोमबत्ती रख दी जाए, धूप में मोम पिघल कर बगले की आंखों पर गिरे, बगला अंधा हो जाए तो फिर उसे पकड़ लिया जाए। उस वक्त दिन के 8 या 9 बजे का वक्त होगा। मेरे पास घड़ी नहीं थी। मैंने बाहर खड़े संतरी से पूछा। उसने पहले तो मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा, फिर अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर निगाह डाली और नफरत से कहा, 9 बजने वाले हैं, बस तुम्हारी मौत में थोड़ा वक्त बाकी रह गया है। मैं कंबल ओढ़े कोने में फर्श पर बैठा रहा, सोच रहा था और वक्त गुजरता जा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि अब सोचने का वक्त गुजर चुका है, अब एक्शन का वक्त शुरू हो गया है। जो कुछ भी करना है मुझे उसी वक्त कर डालना चाहिए। आखिर मैंने कोठरी को धमाके से उड़ाने का फैसला कर लिया। मैंने सोचा कि जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अगर मेरी जिंदगी होगी तो बच जाऊंगा, अगर मर गया तो फिर क्या हो सकता है, मर जाऊंगा। लेकिन इंडिया की हिंदू पुलिस की बेइज्जती और तशद्दुद से तो निजात हासिल हो जाएगी। मुझे मालूम था कि अहमदाबाद में मुझ पर सिर्फ तशद्दुद ही नहीं किया जाएगा, बल्कि मेरी बेइज्जती भी की जाएगी। तशद्दुद तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जिल्लत मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। वक्त गुजरता जा रहा था। ऐन मुमकिन था कि ये लोग कुछ देर बाद आकर मुझे यहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दें, जहाँ मुझे च्युइंगम बम लगाने का मौका ही ना मिल सके। और एक बात यह भी थी कि बम लगाने के बाद मुझे मजीद 1 घंटे तक उसके फटने का इंतजार करना था। उसकी कीमियाई साख्त ऐसी बनाई गई थी कि बम की च्युइंगम टिक्किया किसी जगह चिपकाने के बाद उसके एक तरफ के किनारे को जरा सा दबा दिया जाता। मगर यहाँ तो मैं बम फटने से पहले नहीं भाग सकता था। मुझे बम ब्लास्ट होने के बाद भागना था, वो भी इस सूरत में कि अगर मैं जिंदा बच गया। बम लगाने का फैसला दरख्त की शाख पर बैठकर उसको काटने जैसा था, मगर इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। चुनाचे मैंने जान की बाजी लगाने का फैसला कर लिया। इस फैसले के साथ ही मैंने कंबल की बुक्कल के अंदर ही पतलून की जेब से च्युइंगम बम की डिबिया निकाली और एक छोटी चौकोर टिकिया निकाल कर वापस अपनी जेब में रख दी। बम की टिकिया मेरे सीधे हाथ की हथेली में थी और मैं कोठरी की सलाखों वाले दरवाजे का जायजा ले रहा था। किसी हद तक बचाव की एक सूरत यह थी कि मैं ये बम दरवाजे के बाहर की जानिब दीवार से चिपकाऊं, लेकिन यह काम बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रहा था। संतरी दरवाजे के सामने चलकर पहरा दे रहा था। मैंने उसके कदमों का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। वो एक तरफ से 5 कदम चलकर दरवाजे की दूसरी जानिब पहुंचता था, वहां एक लम्हे के लिए रुक जाता,
फिर पलट कर वापस चलने लगता। मैंने जहन में एक स्कीम तैयार कर ली। उसके साथ ही मैं कंबल ओढ़े उठा और दरवाजे के बिल्कुल करीब आया। संतरी ने मुझे डांट कर कहा, क्या बात है, पीछे चलकर बैठो। मैंने दूसरा हाथ जेब में डालकर 100 रुपए का नोट निकाला और बड़ी आजिज़ी के साथ, जिस तरह नशेई लोग बोलते हैं, संतरी के आगे हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपको भगवान का वास्ता है, मेरा नशा टूट रहा है, मुझे एक सिगरेट या बीड़ी कहीं से ला दें, ये 100 रुपया मुझसे ले लें। मैंने 100 रुपए का नोट उसके आगे कर दिया। संतरी पर सबसे पहला असर यह हुआ कि उसने दाएं बाएं जायजा लिया कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। उस जमाने में 100 रुपए के नोट की बड़ी अहमियत थी। संतरी ने जल्दी से 100 रुपए का नोट मेरे हाथ से लेकर अपनी जेब में रख लिया और सलाखों में हाथ डालकर मुझे पीछे धकेल दिया। चलो पीछे हटकर बैठो। मैं जल्दी से पीछे हो गया। मैं एक नशेई की अदाकारी कर रहा था जिसका नशा टूट रहा था। मैंने दोनों हाथ जोड़े रखे थे। मेरी सीधी हाथ की हथेली के अंदर च्युइंगम बम चिपका हुआ था। मैं वहीं सलाखों के पास जमीन पर बैठ गया। संतरी बोला, अभी कोई आता है तो तुम्हारे लिए सिगरेट बीड़ी मंगवाता हूँ, मेरे पास सिगरेट नहीं है। मैंने दिल में उसे बड़ी सख्त गाली दी। वो मेरे मंसूबे को नाकाम बना रहा था। मेरा ख्याल था कि वो थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाएगा, मगर वो 100 रुपए लेकर भी अपनी जगह पर खड़ा रहा। मैंने कहा, भैया किसी दूसरे संतरी से सिगरेट मांग कर ले आओ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। उसने फिर मुझे गुस्से से डांट कर कहा, पीछे हटकर बैठो। लेकिन मैंने महसूस किया कि इस दौरान वो बरामदे के दूसरे कोने की जानिब देख रहा था। शायद किसी ऐसे संतरी की तलाश में था जो बीड़ी वगैरह पीता हो, मगर वो मुझे सिगरेट फराहम करने के मामले में इतना संजीदा नहीं था। वो 100 रुपए का नोट लेकर हजम कर गया था। अब वो दरवाजे के बाहर चल फिर कर दोबारा पहरा देने लगा। इस दौरान मैं बेमालूम अंदाज में खिसकता हुआ दरवाजे के कोने में आ गया। मैं उसकी मौजूदगी में दरवाजे की एक जानिब बम लगाने का फैसला कर चुका था। मैं वहीं कंबल ओढ़े बैठा इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कराहने लगा जिस तरह वाकई मेरा नशा टूट रहा हो। संतरी इस दौरान इधर उधर जरूर देख लेता। एक बार जब वो दरवाजे के आगे पहरा देने के अंदाज में टहलता हुआ जरा आगे गया तो मैंने कंबल में से हाथ निकालकर सलाखों वाले दरवाजे के कोने में च्युइंगम बम चिपका दिया। बम चिपकाने के साथ ही मैंने उसका खास किनारा जरा सा दबा दिया। जिस वक्त संतरी 5 कदम चलने के बाद वापस मुड़ा, उस वक्त मेरा हाथ कंबल के अंदर था और मैं कराहने की अदाकारी कर रहा था। संतरी ने मुझे गाली देकर कहा, तुम अभी तक यहाँ बैठे हो, चलो पीछे हटो। मुझे तो खुद अब कोने में दीवार के साथ जाकर ही बैठना था, क्योंकि अगर मेरी जिंदगी बच सकती थी तो वहीं से बच सकती थी। मैंने धमाके का अंदाजा लगा लिया था। धमाके के साथ सामने वाली दीवार को दरवाजे और संतरी के साथ ही भग से उड़ जाना चाहिए था। इसके अलावा कुछ नहीं था कि पिछली दीवारें और छत उड़कर किस तरफ को जाती। मेरी अक्ल कह रही थी कि अगर मैं पिछली दीवारों के दरमियान कोने में फर्श पर औंधा लेट जाऊं तो धमाके के जबरदस्त दबाव के अलावा सामने वाली दीवार और छत के मलबे से बच सकता हूं। जब धमाका होता है तो सबसे पहला नुकसान हवा के वो थपेड़े पहुंचाते हैं जिनमें शदीद दबाव होता है। उसके बाद बम में डाले हुए लोहे के कील, लोहे और शीशे के टुकड़े आदमियों को गोलियों की तरह लगते हैं। लेकिन मैंने जो बम चिपकाया था उसमें सिर्फ धमाका पैदा करना था। उसमें लोहे के कील या शीशे के टुकड़े बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उसे इंतहाई धमाका खेज बनाया गया था। जमीन पर औंधे लेटने में एक फायदा जरूर था कि धमाके से पैदा होने वाली हवा के शदीद दबाव के थपेड़े मेरे ऊपर से निकल जाते और बहुत मुमकिन था कि छत के साथ मेरे पीछे वाली दीवार को भी उड़ा देते। जो कुछ भी था, अब मुझे इन सब का मुकाबला करना था। बम मैंने लगा दिया था और बम के अंदर कीमियाई रद्द अमल शुरू हो चुका था। मैंने संतरी को आवाज देकर कहा, महाराज टाइम ही बता दें। उसने बेजारी से घड़ी पर निगाह डालकर कहा, 9 बज रहे हैं। मुझे टाइम का पूरा हिसाब रखना था। इस बम का तजुर्बा हो चुका था। द्वारका फोर्ट में जो बम मैंने लगाए थे वो ठीक 1 घंटे बाद फटना शुरू हो गए थे। इस हिसाब से मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था। 1 घंटे के बाद पुलिस स्टेशन में कयामत बर्पा होने वाली थी। हो सकता था कि इस कयामत में मैं भी रगड़ा जाता, लेकिन जो कुछ करना था मैंने कर दिया था। अब आगे तकदीर का खेल था। मैंने सोचा जिंदगी होगी तो बच कर निकल जाऊंगा। अगर जिंदगी का वक्त पूरा हो चुका है तो अल्लाह मालिक है। सिर्फ एक बात का ख्याल मुझे परेशान कर रहा था कि इस दौरान किसी वजह से मुझे उस कोठरी से निकालकर किसी दूसरी जगह न बंद कर दिया जाए। यह भी हो सकता था कि एसएसपी सिक्योरिटी के पेश नजर मुझे सामने वाली कतार में जो हवालात थे वहां पहुंचा दे। ऐसी सूरत में मेरे मंसूबे पर पानी फिर सकता था। बम को तो 1 घंटे बाद फट कर वहां तबाही मचानी ही थी, लेकिन इसका मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचना था। वक्त गुजरता जा रहा था और मैं अपने जहन में एक एक सेकंड का हिसाब लगा रहा था। एक तरह से टाइम बम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। मैंने इस दौरान 3 बार पहरेदार संतरी से पूछा कि वक्त क्या है। तीसरी बार उसने मुझे गाली दी और कहा, खबरदार जो अब तुमने टाइम पूछा। टाइम तो तुम ऐसे पूछ रहे हो कि जैसे तुमने कहीं बम लगाया है।
दूसरी बार उसने जब टाइम बताया तो इस हिसाब से बम के फटने में आधा घंटा बाकी था। मेरे पास वक्त का हिसाब रखने के लिए अब कोई जरिया नहीं था, बस अंदाजे लगाता जा रहा था कि अब 5 मिनट गुजर गए हैं, अब आधा घंटा गुजरे हुए 20 मिनट हो गए हैं और सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए हैं। जब मेरे हिसाब बल के अंदाजे के मुताबिक बम लगाने के बाद तकरीबन 1 घंटा गुजर गया या गुजरने वाला था, तो मैं एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए कोने में जाकर बिल्कुल दीवार के साथ लगकर औंधे होकर लेट गया और मजीद एहतियात से काम लेते हुए कंबल का सरहाना बनाकर अपने सर के ऊपर रख लिया। संतरी ने सलाखों के पास आकर मेरी तरफ गौर से देखा। मैं एक आंख जरा खोल कर उसे तक रहा था। मैंने थोड़ा सा कंबल मुंह में डालकर दांतों में दबा लिया। संतरी ने मुझसे कोई बात न की और बदस्तूर इधर उधर चलकर पहरा देने लगा। इतने में थाने के अंदर जोर से घंटा बजा। ये बिल्कुल ऐसा घंटा था जैसे स्कूल के जमाने में जब पीरियड खत्म होता तो बजा करता था। मुझे याद आ गया कि थानों में जब 1 घंटा गुजर जाता है तो इसी तरह घंटा बजाया जाता है। मैंने अपने गाल जमीन पर जो कंबल बिछा हुआ था उसके बिल्कुल साथ लगा दिया। मेरे ऊपर दूसरे कंबल का सरहाना था। इस तरह मेरा सर बिल्कुल छुप गया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर संतरी ने ठीक वक्त बताया था तो इस हिसाब से बम को लगे 1 घंटा गुजर गया था। मैंने आंखें जोर से बंद कर ली और अपनी उंगलियां कानों में ठूंस ली। मुझे संतरी की आवाज आई, क्यों बे, क्या हो गया है? बस मैंने फिक्रा यहीं तक सुना। संतरी यहीं तक ही बोल सका। ये नामुकम्मल जुमला उसकी जिंदगी का आखिरी जुमला था। उसके साथ ही मेरी बंद आंखों के अंदर बिजली की चमक दौड़ गई। मेरा जिस्म फर्श पर से 2 फुट उछलकर एक तरफ को गिरा। एक धमाका हुआ था जिसकी आवाज ने मेरे कान बंद कर दिए थे। मेरे हल्क से कुदरती तौर पर एक चीख निकल गई थी। मेरे ऊपर मिट्टी और मलबा गिर रहा था। आंखों के आगे अंधेरा था। मैंने आंखों के आगे आए हुए कंबल को जोर से परे हटाया, मगर कंबल परे न हटा। मेरा सांस घुटने लगा। मैंने टांगे जोर से एक तरफ हिलाई। मेरे ऊपर से मिट्टी और लकड़ियां दूसरी तरफ गिरने लगी। मेरा सर मिट्टी में दब गया। मैंने जल्दी जल्दी हाथों से मिट्टी परे हटाकर सर उठाया तो देखा कि मैं मलबे के अंदर गर्दन तक धंस चुका था। जहां मेरी कोठरी थी और जहां मैं बंद था वहां सिवाय मलबे के और कुछ नहीं था। मैंने उठकर मलबे के ढेर के ऊपर से नीचे छलांग लगाई और एक तरफ को दौड़ा। खुदा का शुक्र है कि मेरा जिस्म सलामत था। न मेरी कोई हड्डी टूटी थी, न कोई चोट लगी। मुझे दौड़ते हुए लोगों ने, बल्कि थाने के अमले ने शायद देख लिया था और किसी ने चिल्लाकर कहा था कि इसे पकड़ो, ये भाग रहा है। मेरा रुख थाने के मेन गेट की तरफ था जहां पुलिस की 2 गाड़ियां उल्टी पड़ी थी। सिर्फ एक गाड़ी दरवाजे के पास खड़ी थी। मैं जितनी ताकत से और जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। मुझे अपने पीछे लोगों के दौड़ने और शोर मचाने की आवाजें आईं। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं बेतहाशा भागता हुआ थाने से बाहर आया, बाजार में से उस वक्त एक मोटरसाइकिल सवार मेरे सामने से गुजरा। बाजार में लोगों की आमदोरफ्त की वजह से मोटरसाइकिल की रफ्तार हल्की थी। मैंने मोटरसाइकिल सवार को देखा, वो मोटरसाइकिल के साथ ही गिरा था। मैंने जल्दी से मोटरसाइकिल उठाया, वो अभी तक चल रहा था। मैं उस पर छलांग लगाकर बैठ गया। जिस तरफ उसका मुंह था उसी तरफ उसे दौड़ा दिया। मेरे पीछे मुझे किसी जीप के स्टार्ट होने की आवाज आई। यकीनन ये पुलिस की जीप थी जो मेरे पीछे आ रही थी। मैं ट्रैफिक के दरमियान लोगों से मोटरसाइकिल को बचाता तेज रफ्तारी के साथ बाजार की भीड़ से निकलकर एक जगह पहुंचा जहां से एक खाली सड़क बाएं तरफ जा रही थी। मैंने मोटरसाइकिल को उस सड़क पर डाला और उसे फुल स्पीड पर छोड़ दिया। खुदा जाने ये सड़क किस तरफ जाती थी और मोटरसाइकिल में पेट्रोल कितना था। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था। मैं तो इस इलाके से बस किसी न किसी तरह निकल जाना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।